بے مثال کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم، میں سروش کفیل۔ ایرک یون جنہوں نے زوم بنایا ہے، اسٹینلی جنہوں نے مارول یونیورس کریٹ کی، یا کینٹکیز فرائیڈ چکن کی بات کر لیں، ان سب میں ایک چیز کامن تھی۔ یہ سارے فاؤنڈرز انہوں نے اپنا کریئر جو ہے 40 سال کے بعد سٹارٹ کیا۔ They actually proved that age is just a number۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے سیلف ٹاٹ پینٹر ہے جنہوں نے اپنا کریئر 40 کے بعد سٹارٹ کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افتخار وانی کی۔ چلیے ملاقات کریں۔ جس کا کوئی پیشن ہو اس کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کشمیر کو لاتا تھا اپنے وہاں، خود میں اس میں کافی پلیجر حاصل کرتا تھا۔ یہ تو ایک غذا ہے روح کی۔ I cannot do away without it۔ افتخار صاحب، نیوز 18 سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ایک مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، آرٹ کیسے ہوا آپ کی لائف میں؟ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے سروش صاحب اور آپ کا بہت شکریہ، اور نیوز 18 کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ ہر دل عزیز میزبان اینکر پرسن ہیں یہاں، اور ہم آپ کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوا۔ تو میرا جو آرٹ کا سفر ہے، آفیشیلی میں 2012 سے میں نے پینٹنگز کرنا شروع کیا، لیکن اور وہ لیٹ تھا میرے ایج کے حساب سے، لیکن مجھے شوق، جیسے کلیشے سا ہے لیکن مجھے شوق بچپن سے تھا۔ جی، میری جو پیدائش ہے وہ قصبہ سوپور سے ہے، تو وہاں پر بچپن سے مجھے شوق تھا پینٹنگ کرنے کا، لیکن ایسے کوئی استاد اور ایسے کوئی مواقع نہیں ملے جہاں میں اس پر کوئی اور کام کر سکوں۔ تو پھر جاب کے سلسلے میں پہلے تو میں اپنی تعلیم مکمل کی، سوپور سے گریجویشن کیا، پھر MBA میں نے بنگلور سے کیا۔ تو آپ نے مطلب فائن آرٹس کی کوئی؟ نہیں، میں اس میں سے سیلف ٹاٹ ہوں، ایک حساب سے کہیں گے میں ان پڑھ ہوں آرٹ میں۔ تو آرٹ کے سلسلے میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو بچپن میں اسکیچز وغیرہ بناتا تھا۔ میرے والد صاحب پیشے سے انجینئر، واز اے ویری بریلینٹ انجینئر، تو ہی یوزڈ ٹو انکریج می ٹو ڈرا کارٹونز۔ تو مجھے یاد ہے کہ جو اخبار آتا تھا سری نگر ٹائمز، اس میں کارٹون آتا تھا بشیر احمد بشیر صاحب، تو وہ میں بناتا تھا روز۔ تو مجھے لگتا ہے وہ میرے پہلے استاد ہیں۔ So I would draw portraits, I would draw جیسے sketches, caricatures, maybe some maps. My father would tell me to help him, so I would do this, and he used to encourage me ان دنوں۔ تو ان رنگوں سے بعد میں تعلیم کے سفر میں اور روزگار کے سلسلے میں کبھی پھر دلی، بنگلور، اور پھر سعودی عربیہ میں، مڈل ایسٹ میں رہا میں، بٹوین بحرین، دبئی، سعودی عربیہ، ایسا میرا کام تھا مارکیٹنگ۔ So I was working in a British company, تو ایز اے مارکیٹنگ مینیجر اور انڈسٹریل مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ تو وہاں پر اور میں سافٹ اسکل ٹرینر بھی رہا، جہاں پر میں ٹریننگز دیتا تھا وغیرہ۔ تو پھر یہ جو دبی ہوئی میری خواہش تھی، یہ پھر اندر ہی اندر اس نے شور مچانا شروع کیا۔ تو میں نے پھر وہاں پر، چونکہ آرٹ کی مٹیریل کی دکانیں بڑے یہ سعودیہ میں رہتے ہیں، اچھے آرٹ پروڈکٹس اور مٹیریلس، میں نے پھر شروع کیا۔ تو اس وقت وہ پھر جنون کی حد تک وہ آ چکا تھا، اور میں نے پینٹنگز بنانا شروع کیا، جو میں نے پہلے آئل میں ہی بنایا، آئل پینٹنگس۔ تو دوستوں نے، رشتہ داروں نے اور کولیگس نے بہت پسند کیا وہ، اور بالکل کوئی تعلیم نہیں تھی تب تک؟ بالکل سیلف ٹرائس میں کہتا ہوں رنگ استعمال کرنا ہے، طفل مکتب بھی نہیں جس کو کہتے ہیں کہ تو یہ، لیکن شوق صرف پتہ تھا پینٹنگ بنانی ہے۔ 2012 سے کام شروع میں کیا، اور پھر جب وہاں پر میں بناتا گیا تقریباً تب سے آج تک میں نے 500 پینٹنگس بنائی ہیں۔ سو پھر سعودیہ میں پارٹیسپیٹ کیا، وہاں سعودی رائل کمیشن، وہاں فیسٹیولز ہوتے تھے، فلاور فیسٹیول، سو دے یوزڈ ٹو انوائٹ می۔ مطلب فلاور فیسٹیول ایک ہوتا ہے، وہ وہاں پر پھر آرٹسٹ کو بھی بلاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ یمبو ایک ایریا ہے، تو وہاں پر ایک
बड़ा ही होता है 10-15 दिन का, जैसे यहाँ टूलिप गार्डन है फेस्टिवल वैसे लाइव में पेंटिंग्स बनाता था। उनको बड़ा पसंद आता था यहाँ के जो कश्मीर के मनाजिर में बनाता था, जैसे डल का हो, सनसेट हो, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हो, दरख्त पेड़ हो, चिनार हो, पाइन ट्रीज हो, तो इनके लिए नया होगा। बड़ा वो वीडियोस लेते थे, फोटोग्राफ्स लेते थे, वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। ये चलता रहा। तो फिर उन्हीं दिनों में जब भी मैं फिर वेकेशन में कश्मीर आता था तो मैं अपनी ये कलेक्शन साथ लाता था और यहाँ पर फ्रेम वगैरह करके मैंने फिर अपने खर्चे पर ऑर्गेनाइज किए एग्जीबिशंस, और आज तक मैंने 4-5 सोलो एग्जीबिशंस करे। 2018 अगस्त में मैंने एक एग्जीबिशन किया एसपी कॉलेज श्रीनगर में, तो जिसका थीम था ट्रिब्यूट टू शहर ख़ास। क्योंकि ये जो मुझे बहुत ये पुराना जो आर्किटेक्चर है ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, और मेरे फादर भी पेशे से सिविल इंजीनियर थे, तो ही यूज्ड टू टेक मी अलॉन्ग विद हिम टू खानका शरीफ। और नमाज उन दिनों मुझे उतनी रगबत नहीं थी मस्जिद से, तो मैं बोर ही होता था, लेकिन बाद में फिर मैं उनके वफात के बाद वही मनाजिर बनाता रहा। खानका शरीफ, ये सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जो वहाँ का पुराना डब है, जी ये आर्किटेक्चर है, ये बड़ा मुझे पसंद है। तो इसको मैंने एक सीरीज़ बनाई, उसको मैंने खराज अकीदत पेश किया शहर ख़ास को, ओल्ड टाउन जिसको हम शहर ख़ास कहते हैं। तो उसमें से ओवैसी साहब का आस्थान जहाँ आपने देखा होगा, वहीं पर हमारा पुरशियार मंदिर भी है, उसको भी मैंने बनाया। बहुत बढ़िया। तो बल्कि वो एक किसी ने खरीदी, वो लंदन में रहते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो पेंटिंग सारी। तो ये अब सिलसिला ये जो ये मेरे दिल के बड़े करीब है जी। तो अब मैं इसमें अब साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर भी ले जाऊँ। नॉर्थ कश्मीर थोड़ा मैंने कवर किया है, और जो शाह हमदान साहब जहाँ उनमें गए जियारतें की सूरत में जो भी प्लेस बनाई है, वो अच्छी जगहों पर उनका लोकेशन है, वो पुराना आर्किटेक्चर वो मैं बनाना चाहता हूँ उसको अपने हिसाब से। मतलब आप ट्रैवल करते हैं, फिर लाइव पेंट बनाते हैं? हाँ, लाइव भी बनाता हूँ जी, लाइव भी बनाता हूँ। और यहाँ पर जैसे कभी कई उसको कहते हैं प्लीन एयर पेंटिंग, वाटर कलर में हमें बड़े सेशंस हमने किए हैं लाइव पेंटिंग्स के भी। तो इवेंचुअली आपने जो टेक्निकलिटीज इसकी सीखी, बारीकियाँ सीखी पेंटिंग की, वो आपने उनके लिए कोई क्लासेस ली, ऑनलाइन आपने क्लासेस ली, या कैसे आपकी शुरुआत हुई? कोई क्लास मैंने नहीं ली। मुझे सिर्फ यही जरूरत कि मुझे एक पेंटिंग बनाई, लेकिन बेसिक्स पर काम करता रहा, हिट एंड ट्रायल, ऐसे मैं करता रहा, सीखता रहा, खुद ही सीखता रहा। और काफ़ी इस दौरान, क्योंकि मैं सऊदीया में था, वहाँ इंटरेक्शन नहीं था आर्टिस्ट से। फिर यहाँ आके मुझे कुछ फ्रेंड्स जैसे जावेद इकबाल है, रऊफ क्यासी, एक बच्चा साहब है, जोर जरगर साहब, उनसे मुलाकात जो ही मैं आता था, मैं कोशिश करता इन लोगों से मिलूं। फिर हम आर्ट डिस्कस करते थे और कुछ टिप्स लेता था मैं, कुछ शेयरिंग होती थी, तो उससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। आगे आपको क्या फ़ायदा हो उसके हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर हम पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इफ्तिखार साहब के साथ गुफ्तगू जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातें चल रही है मशहूर आर्टिस्ट इफ्तिखार साहब से। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि इस दौरान जब आप बाहर थे, गल्फ में थे, यहाँ पे आपने अपना जो अंदर का एक आर्टिस्ट है उसको डिस्कवर कर लिया था, लेकिन एट द सेम टाइम यू वर वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। जी। तो कैसे बैलेंस कर पा रहे थे आप वो आर्ट जो आपने रिसेंटली अपने अंदर डिस्कवर किया था, वो आग, और उस एमएनसी की जॉब को? जी देखिए, सऊदीया में तो ऐसा था, तो बिजी लाइफ तो थी बहुत। हम सुबह निकलते थे, हम 8 बजे फिर वापस आते थे, लेकिन वहाँ वीकेंड्स होते थे हमें 2 days ऑफ। तो चूँकि वहाँ पर अभी विजुअली तो वहाँ पर सहरा है जी, कोई ये नहीं, तो मैं जो अपने आप को जो ये मेरी पेंटिंग्स थी, चूँकि मैं कश्मीर आपको पता है कितना हमारा ये पोइटिक और रोमांटिक एटमॉस्फेयर यहाँ है। यहाँ पर जितने भी पेंटर निकले, जितने भी शायर निकले, कम है इस ब्यूटी को इसको अप्रिशिएट करने के लिए, इस पर अशार लिखने के लिए, इस पर पेंटिंग्स बनाने के लिए जितना भी काम हो उतना कम है, यानी जितने। तो वहाँ पर मैं फिर जो वेकेशन में मैंने कुछ तस्वीरें ली होती थी या मैं खुद देखता था, तो फिर मैं उसी दुनिया को कश्मीर को लाता था अपने वहाँ। छोटा सा एक स्टूडियो भी रखा था मैंने, तो वहाँ पर मैं इस पर काम करता था। कोई ट्यूलिप गार्डन बनाया, कोई 4 चिनारी, और यहाँ के जो चिनार हैं, पेड़ है, मेडोज़ हैं,
इनको बनाता था और मैं भी एंटरटेन और खुश हो जाता था खुद मैं इसमें काफ़ी प्लेजर हासिल करता था. तो वहाँ पे जो एक कश्मीरी डायस्पोरा था, लाइक एक कश्मीरी जो इनकी कम्युनिटी थी, वो आते थे आपके एग्जीबिशंस में? हाँ, सब आते, क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिटी होती है फिर हम क्लोज हो जाते हैं कश्मीरी, तो सब आते थे बच्चों के साथ, और जो भी मैं कोई काम करता था वो देखने के लिए ज़रूर आते थे. हाँ, और बाकी जो कश्मीरी जो बाहर भी हैं उनके फ्रेंड्स कुछ खरीदते भी थे, ये भी था. लेकिन मेरा इसका नहीं था, मतलब बिजनेस का, ये था कि मैं बना रहा हूँ एंड इट गिव्स टू गिव मी इमेंस प्लेजर. काफ़ी सारे लोग ये भी कहते होंगे इफ्तिखार साहब कि बड़ा लेट स्टार्ट किया यार. हाँ, तो उनके लिए क्या कहना है? बस इसमें ये तो एज इसमें कुछ नहीं है, जो मुझे अपने आप से ये मतलब ये, क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई काम किसी भी स्टेज पर हो सकता है, इसमें कोई एज की कैद नहीं है. तो आदमी कभी भी जिसका कोई पैशन हो उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए. बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लिखना शुरू करते हैं आफ्टर 60, या कुछ राइटर्स हैं या पेंटर्स हैं, कुछ बड़े ये करते हैं. अब बचपन से जिसका अब मौका मिले तो ज़्यादा बेहतर है. कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको. मतलब कठिनाइयाँ जब हम बात करते हैं मुश्किलों का, वो ये है कि लाइक ऐसे फॉरेन कंट्री में थे आप, यहाँ से डिस्कवरी थी अपने उस पैशन को ढूंढने की, और किस तरीके की मुश्किलात आए उस टाइम पे अपने इस आर्ट को जिंदा रखने की आपके अंदर? बस ये टाइम का ही था, उन दिनों टाइम का होता था मसला. ये ऐसी छोटी उतनी ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं थी, टाइम का ही से हम फाइट करते थे कि उधर से एक जुनून है, उधर से टाइम की पाबंदी है, अपने काम है. मैं उस कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी था, वहाँ थे एक तरफ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में जाना, विजिट करना, प्रेजेंटेशंस देना, मार्केटिंग, ये वो. तो फिर इस दुनिया को भूल के फिर आर्ट की दुनिया में आना, तो आदमी को बड़ा ही सुकून मिलता था. तो फिर आपने प्रोफेशनली यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट? ये प्रोफेशनली ये है, मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस भी है जी, और इस पर भी हम ये एक शौक है, इसको भी जारी रखे हुए हैं, इसको तो छोड़ना नहीं है. ये तो एक ग़िज़ा है रूह की. आई कैन नॉट डू अवे विदाउट इट. So I should be painting after 15 days, after 1 month, in a 1 month. So I'm continuously, ये एक रिट्रीट है मेरे लिए, एक कैथेरेसिस है मेरे लिए. कोई पर्टिकुलर किस्म की पेंटिंग्स हैं जो आप पसंद करते हैं बनाना? लैंडस्केप से मैं बनाता हूँ, और ओल्ड आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कल्चर, विलेज लाइफ, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ, किया है और आगे भी इसको आगे बढ़ाऊँगा. कोई ख़ास वजह रहती है? बस ये क्योंकि रहा है, क्योंकि आधा मैं रूरल साइड से हूँ, तो वो जहन में है, और फिर यहाँ पर श्रीनगर में रहते हुए यहाँ का ओल्ड आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है, तो उसको मैं हेरिटेज, ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो है अगर कोई बाहर वाला देखे हमारे जो कश्मीर में, हमें वी हैव टू वर्क टू कीप आवर कल्चर अलाइव. जितना भी हम कल्चर को अपने इस पे आबियारी करेंगे, इस पर ज़्यादा काम करेंगे, तो उतना हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे कश्मीर की ब्रांड के लिए बेहतर है. क्योंकि कल्चर, सोसाइटीज़ आर नोन बाय इट्स आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक. जितना ये स्ट्रॉन्ग हो उतनी आपकी इज़्ज़त दुनिया में ज़्यादा होती है और लोग इसमें अप्रिशिएट करते हैं. अक्सर देखा है एक आर्टिस्ट जो है नॉस्टैल्जिया जो है उसमें जीता, और कहीं ना कहीं फिर अपने आर्ट के थ्रू उस नॉस्टैल्जिया को बाहर लेके आता है. देखिए, ये तो एक खुसूसियत है आर्ट की. इसमें आपको एक थोड़ा सा पावर मिलता है टू डू समथिंग. चाहे पुराना कोई ख्याल दिल में हो, उसको हम कैनवास पर उतार सकते हो. कोई नया ख्याल आए या अराउंड कुछ देखे, तो हमें ये फ्रीडम होता है, क्योंकि जैसे किसी ने कहा था, वी कैन मूव माउंटेन्स. करेक्ट. ये दिखाएं, जो भी हमें क्रिएटिव लिबर्टी है उसको हम यूज़ करके उसको दिखा सकते हैं कैनवास पर. अच्छा, ये बताएं कि क्या फ़र्क है, आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, क्या फ़र्क रहता है कि अगर आप एक, हम ये कह सकते हैं ना सिंपल वर्ड्स, कि एक इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ और एक फ्री हैंड जिसका है जो सेल्फ टॉट है. इनफैक्ट हमने ये भी देखा कई सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, बहुत कमाल का काम है उनका, मतलब बहुत कमाल का. टीचिंग लेवल बोल दीजिए. सेल्फ टॉट
थोड़ा फ्री होता है जी। क्योंकि उसने कोई रूल नहीं सीखा होता है, उसके कोई बेसिक्स भी नहीं होते, वो अपनी मंजिल खुद ही तलाश करता है और खुद ही ट्राई करता है और कुछ मुझे लगता है ज्यादा क्रिएटिव चीजें वो बना पाता है। So is this a pro or a थोड़ा सा con? no, कुछ दोनों में ये है, सिर्फ बेसिक है जुनून, जिसमें ये करने का जुनून हो, शौक हो, चाहे वो क्लासरूम में बैठे उसको 10 टीचर वहाँ आर्ट के पढ़ाए, उसको कोई शौक ही नहीं है तो क्या बनाएगा। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि कॉलेज ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जितने आर्ट के कॉलेज हो, जितने इसमें इंस्टीट्यूट्स हो, और उसमें तो आर्ट डेवलप होता है। डिजिटल पेंटिंग्स का एक दौर आया है जी, क्या लगता है आपको कितनी इंपॉर्टेंट है डिजिटल पेंटिंग्स? ये सब चीजें जितना भी आर्ट वर्क हो, जैसे दुनिया चेंज तो होती रहती है, चेंज को हम मना नहीं कर सकते जी। चेंज को होने देना चाहिए जी। डिजिटल आर्ट आए और अपना काम करे, क्योंकि डिजिटल वी नीड डिजिटल आर्ट जी। एडवर्टाइजिंग में, बाकी जगहों पर। जी। आजकल लोग वो क्या कहते हैं उनको, NFT, NFTs, जी, 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 जी। नॉन फंजिबल Correct. NFT टोकन, ऐसा Correct, कुछ अगर मैं NFTs नॉट हैं, रॉन्ग, जी, जी। तो उसकी बनाते हैं लोग, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की तरह वो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। Correct. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये है तो आपको art का लगता कमाल। है स्कोप है? सारे हर चीज में इसमें स्कोप है। बट वी हैव सीन हियर अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं एक सिनिकल माइंडसेट के साथ चल रहे हैं इस वक्त, और वो जो रुझान है आर्ट की तरफ वो बहुत कम है ना। मुझे लगता है कल ही मैं था, अभी एक गेस्ट के तौर पर सोपोर में एक आर्ट कैंप मुनक्कद हुआ, मतलब एक एग्जीबिशन हुआ, बट मैंने देखा, आई वाज सो हैप्पी, कश्मीर इज ओवरफ्लोइंग विद टैलेंट, इतना स्केच और क्रिएटिविटी और सब चीज हो रहा है, बस ये दे आर जो कि बहुत अच्छी चेंज, बहुत ही अच्छी चेंज है। So went out your experience. वेंट आउट, देखिए कोविड आया और आजकल देखिए मोबाइल का दौर है, स्क्रीन टाइम, लोग वी आर ग्लूड टू द दिस मोबाइल्स, इसको निकालने के लिए, इससे निकलने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आर्ट एग्जीबिशंस हो, फ़नून लतीफ़ा में काम हो, म्यूज़िक हो, पोइट्री हो, ताकि हम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा बच्चे टाइम स्पेंड न कर पाए। तो ये पेंटिंग एक अच्छी चीज़ है, इसमें आप कितना विजुअल पोल्यूशन है दुनिया में, तो अब आप कोई पेंटिंग देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं, कुछ देर के लिए उसमें खो जाते हैं, तो इट गिव्स इट अपने इस पर सेंसेस पर बड़ा असर पड़ता है। आजकल तो आर्ट थेरेपी भी आ चुकी है, ताकि हम ये अपने मेंटल इसको स्ट्रॉन्ग करें, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बस हमारी जो प्रोग्राम है उसका आखिरी जो है सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातें चल रही है इफ्तिखार साहब से। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है क्रिएटिवली जो ये आर्ट है इसको फिर और स्ट्रॉन्ग करना, फाइन ट्यून करना? जी, ये तो क्रिएटिव होना, उसको इमेजिनेटिवली स्ट्रॉन्ग होना, खा कितना भी ये तखय्युल हो, कितना भी आदमी में जमालियाती हिस्स हो या तख्लीकी लिहाज से वो मजबूत हो, लेकिन इन सब चीज़ों को कैनवस पर उतारने के लिए you have to know the skill, you have to know the basics, and you have to go through the grind of it. तब जाके ये creativity, imagination सब आप कैनवस पर उतार सकते हैं, when you know the process and the... So when you're talking about grinding yourself,
कैसे रिजुविनेट करते हैं आप अपने आप को, यू नो, वंस यू काइंड ऑफ ग्राइंडिंग योरसेल्फ, मेकिंग अ मास्टरपीस, उसके बाद आप स्नैप आउट कैसे करते हैं और दूसरी तस्वीर पे असल में ये तो उसका जवाब ये है, ये जो इसका ग्राइंड है और इसका जो तकलीफ है वही इंसान की दवा भी है। अच्छा, यानी कि इसकी जो तकलीफ है उससे हमें प्लेजर मिलता है, खासकर मुझे नहीं पता बाकी लोगों का। और इसका जो रियाज है, इसका जो ग्राइंड है, उसको प्रोसेस पर जाने के बाद मैं खुद रिलैक्स और ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता हूँ। तो एक फॉर्म ये भी होता है कि आप म्यूजिक बनाते बनाते पेंट करते हैं, स्ट्रोक्स करते हैं। बिल्कुल। तो आप म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं? मैं देखता हूँ, म्यूजिक में मुझे दिलचस्पी है, फिल्मों में मुझे दिलचस्पी है, हर एक, मतलब चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, ड्रामाज हो, ऑल दीज थिंग्स आई वॉच एंड आई अप्रिशिएट। पोइट्री हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और इसका भी असर पड़ता है। लेकिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती। ओनली इफ देयर इज टाइम ऑफ अजान देन आई विल ब्रेक एंड प्रे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई लोग, बहुत से मेरे जो बेटा है या माय मिसेस, दे कम गो, वो कहते हैं हमें आए थे आपने देखा ही नहीं। फैमिली का कैसा रिएक्शन है, मतलब हाउ इज योर सन लुकिंग एट दिस क्राफ्ट? वो बहुत ही उनको पसंद आता है पहले तो, क्योंकि अब वो समझते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करते चीज़ों को, और उनको पता है कि ये पेंट क्या है, बेसिक्स वो भी सीख गए हैं। जी। लेकिन उनको मैं भी सिखाता नहीं, वो सोहबत में वो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जी। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि अभी जो है बहुत सारे लोग जो है यंगस्टर्स हैं, उन्होंने सीखा नहीं है, दे नॉट लाइक यू सेल्फ टॉट, लेकिन कहीं ना कहीं इनहिबिशंस है, डर है कि अगर रंग देखेंगे तो कुछ गलती ना हो। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बी ब्रेव, कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई धमाका नहीं होने वाला। टेक योर पेन, टेक योर कैनवस, टेक योर कलर्स, बी ब्रेव, स्ट्रोक लगाओ, करो, गंद फैलाओ, रंग फैलाओ। जैसा एक किसी कंप्यूटर वाले का पीपल आर अफ्रेड टू क्लिक, तो क्लिक होने से कोई उसमें कोई ब्लास्ट नहीं हो जाएगा कंप्यूटर से। बी ब्रेव इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड एल्डर्स आल्सो शुड एनकरेज इट। सो उसके भी उनका भी आजकल, क्योंकि बच्चे भी टेंस होते हैं, इसकी वजह से तालीम का प्रेशर है, कोर्स भी ज़्यादा है, यानी मैंने कंटेंट जो है ना सिलेबस का वो भी ज़्यादा है। तो इफ दे कम आउट ऑफ इट और मोबाइल से दूर रहें, इसमें कलर करें, कुछ करें, तो बहुत बड़ा अच्छा है एक बच्चे की पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। इफ्तिखार साहब, आर्ट जो है, आपको लगता है कि पर्टिकुलरली आपके आर्ट से एक सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा है, भले वो चंद लोग ही क्यों ना हो? जी, उसके मैं एक ताज़ा तरीन मिसाल मुझे लगता है कल की, उसी में इसका जवाब होगा। मैं कल आज से अपने, मेरी जो अंकल है, फूफा है, सोपोर में एक इवेंट था, तो उनको मैं, उनकी ही ज़ईफ़ है, तो उनको इयादत के लिए मैं गया, तो बट ही नोज दैट आई एम एन आर्टिस्ट। तो उन्होंने कहा आपने कोई खाका बनाया है? खाका मुझे समझ नहीं था, खाका ही वांटेड। तो मैंने उनको दिखाई मोबाइल पर जो एक दो पेंटिंग्स, उनके पास मेरी पेंटिंग एक है जो को देखते रहे, तो उसमें था एक 4 चिनारी की पेंटिंग। उसने कहा इसका बड़ा हो सकता। तो उस वक्त वो 2 दिन बाद उन्होंने बात की थी, उनके चेहरे पर जो, उनकी आंखों में जो मैंने चमक और उनकी आवाज़ में जो खनक थी, जो तस्वीर मैंने दिखाई, वो मेरे लिए आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो मुझे लगा बहुत ही, मतलब ये मेरा एक रिवाज था, किसी भी आवाज़ से कम। तो उनका जो एक्सप्रेशन था, जो खुश हुए, हालांकि वो मोबाइल से उस वक्त देखी तस्वीर। खैर, मन तो कर रहा है गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी रहती है। उम्मीद करेंगे कि आपके आने वाले आर्ट एग्जीबिशंस में हम लोग आए। बिल्कुल, वेलकम। और आप और ज़्यादा पेंटिंग्स बनाएं, और ज़्यादा रंग बिखेरे लोगों की ज़िंदगियों में, और अपने कैनवस पे हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरोज साहब आपका, जो ऐसे प्रोग्राम करते हैं और ऐसे काविशें करते हैं ताकि हमारे आर्ट कल्चर में फ़रोग मिले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कश्मीर को लाता था आपने वहाँ। जैसा कि आपने देखा, इफ्तिखार साहब ने कहा कि अगर आप में पैशन और डेडिकेशन है तो जो उम्र है ये मायने नहीं रखती, इट जस्ट बिकम्स अ नंबर। उम्मीद करते हैं कि हम आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। आदाब।